Hello everyone, welcome back to Ikjot Nursing Academy. So today's topic of discussion is how to safeguard yourself while dealing with violent patient. This is one of the question which the BSc student exam paper uh, is there. So we are going to discuss. This is a question which is given by one my student. So उसने मुझसे पूछा है कि मैम अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स या 12 मार्क्स में आता है तो हाउ वी कैन राइट दिस क्वेश्चन. So now today we are discussing how we can write to deal with the patients, violent patient while safeguarding ourselves also. So what is the violent patient or aggressive patient? Means they are showing aggression or violence in your respected wards. So that means any act or threat of physical, verbal or psychological aggression or the destruction or abuse of the property by any individual, that is known as violent behavior or violent act. So we have to deal this kind of patient. So what we have to do, if the question is how we can safeguard ourselves or how we can save ourselves while as a nursing profession while dealing with the violent patient or while dealing with the aggressive patient. So हम क्या क्या लिखोगे आप उस क्वेश्चन में when it is in your final exams. So in BSc or post basic or GNM any class or MSc. So you can start with a definition by defining violent behavior as I am showing you here in the PPT. So but you have to start the answer with the violent behavior definition. After completing the definition, so what you can do, you can simply um, summarize some main points keeping in mind, keep in mind or main headings. So that is how you can safeguard yourself which is related to your safety. Okay, you have to mention that points after explaining the violent behavior, definition of violent behavior. So what are the some common points? That first is make sure of records to flag patient who are at the risk of or have a past history of violent behavior. Means हम जो पेशेंट की फाइल है, जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स क्या है उसकी फाइल, सो उसमें हम फ्लैग कुछ पर्टिकुलर उसमें साइन लगा होना चाहिए. सो बाय सीइंग द फाइल ऑफ द पेशेंट इटसेल्फ हमें पता चल जाए. दैट इज फर्स्ट मेन पॉइंट कि हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए रेडी हो जाएं कि हाँ जब हम पेशेंट के पास जाएंगे तो दिस इज द पेशेंट विच ऑलरेडी शोन सम symptoms in the past which is related to your aggression or violent behavior. So we have to see that this is the first main point keeping in mind. So which is beforehand, जो हमें पहले से first point है. Second is design your practice facility with security and safety features. Means in your ward area, in the psychiatric ward area, there are enough security and society available. So we can able to manage if any person attacks you suddenly, shown aggressive behavior or violent behaviors suddenly, you can able to manage, we can able to safeguard yourself with the help of your security people. Third point is remember that your first reaction when faced with the threat of violence is to try and escape or evade an attack. मीन्स आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, आपको क्या रिमेम्बर रखना है, पहला रिएक्शन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीछे हटना है अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, एस्केप होने के लिए. दैट इज वी आर लर्निंग दिस पॉइंट्स एक्चुअली in the principles also, in principles of psychiatric nursing also. To last is to prepared or define yourself if you cannot escape an attack. means अगर आप छोड़ नहीं सकते, because अगर आपको लगता है कि पेशेंट किसी और को हार्म नहीं करेगा, वो सिर्फ आप ही हो वहां पे और अदर कोई पर्सन ऐसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से हट सकते हो थोड़ी 2 सेकंड के लिए, यू कैन एबल टू मैनेज. पर अगर नहीं ऐसा हो सकता तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रहना है, बी रेडी. आपको उस पेशेंट को डील करने के लिए रेडी रहना है. तो उसमें आप क्या करोगे, आप सिक्योरिटी पीपल्स की हेल्प लोगे. तो यही सब पॉइंट्स हैं जो आपको कीप इन माइंड रखनी है
इन राइटिंग ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो विद दीज हेडिंग्स when this question came in exam, in your final exam for 10 marks. Next heading जो आपको cover कर सकते हो that is while interacting with the client be sure to, और how to interact with the client. तो अगर आपको next point आप क्या cover कर सकते हो, next heading आप क्या cover कर सकते हो कि आप जब interaction करोगे violent patient के साथ तो आपको वो कैसी करनी है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इज गिव योरसेल्फ एन आउट, मींस कीप योरसेल्फ क्लोजर टू द डोर सो यू कैन क्विकली एग्जिट इफ नीडेड। तो आप इसका ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो। सेकंड आप लिख सकते हो बी अवेलेबल टू कॉल फॉर हेल्प, आप बी रेडी टू कॉल फॉर हेल्प। थर्ड इज रिमूव पोटेंशियल वेपन्स, आपको सब जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे वो वेपन्स हैं जिससे वो हार्म कर सकता है उसको उस एरिया में नहीं रखना है, पेशेंट के पर्टिकुलर वार्ड एरिया में नहीं होना चाहिए ऐसा पॉइंट। सो नेक्स्ट इज अवॉइड वर्किंग अलोन, अगर आपका पेशेंट एग्रेसिव और वायलेंट पेशेंट है सो यू कांट वर्क अलोन इन दैट पर्टिकुलर यूनिट, आपको अपने लिए साथ में कोई सिक्योरिटी पीपल या कोई असिस्टेंट हेल्पर कुछ ना कुछ आपके साथ होना चाहिए। सो दैट मीन्स these are the things we need to write also when we are writing for the question, that is अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ व्हाइल डीलिंग, तो आपको अटेम्प्ट करना विद द स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ वायलेंट बिहेवियर। सेकंड यू कैन राइट सम मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स। so after that you can write while interacting with the violent client we have to be aware of, तो आप ये भी इसको हेडिंग दे सकते हो, मैंने आप while लिखा है while interacting with the client be sure to, आप ये भी इसको हेडिंग दे सकते हो in your exam, that is while interacting with the patient we can what points we need to sure, आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज आप इसके बाद उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये मिनिमम पॉइंट्स हैं, इनको आप एक्सप्लेन भी कर दोगे, मैंने हेडिंग्स के साथ आपको दिखाया, अगर आप इनको एक्सप्लेन भी करोगे तो आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो टू स्कोर बट यू कैन इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ वायलेंट एंड एग्रेसिव पेशेंट, वायलेंट एंड एग्रेसिव पेशेंट की जो मैनेजमेंट है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज विद स्टार्टिंग विद द असेसमेंट। असेसमेंट में हमने एक चीज डिस्कस की थी इन द साइकेट्रिक इमरजेंसीज आल्सो, दैट इज ए बी एंड सी। ए इज फॉर असेसमेंट, बी इज फॉर बिहेवियरल इंडिकेशन एंड सी इज फॉर कन्वर्सेशन। तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो, मींस असेसमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट of the kind patient with aggressive or violent behavior heading देके then you have to start with the assessment। आप नर्सिंग वाला जो पार्ट है मेन उसको भी अपने इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, बट पहले आपको वो मेन पॉइंट्स लिखने हैं, वायलेंट बिहेवियर लिखना है, बी श्योर कि आप वो पॉइंट्स कवर कर रहे हो, उसके बाद आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग योर 10 to 12 मार्क्स क्वेश्चन। सो टू स्कोर मोर, ठीक है। तो असेसमेंट में क्या आएगा, एबीसी आएगा, दैट इज असेसमेंट बिहेवियरल इंडिकेशंस एंड कन्वर्सेशन। सो इसमें एक क्वेश्चन था मेरे पास आपके लिए, दैट व्हाट शुड बी फर्स्ट एक्शन व्हाइल पेशेंट हिटिंग हिज हेड टू द वॉल। आप सबसे पहले क्या करोगे अगर पेशेंट जो है हिट कर रहा है वॉल के ऊपर, आप इस क्वेश्चन को आंसर करो पहले, देन आई विल टेल यू। दैट इज आंसर इज रीस्टेनिंग, सबसे पहले आपको उसको रीस्टेन करना है, देन रिमूव शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद आपने देखना है उसके आसपास कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है, वो आपको रिमूव करने हैं, देन यू हैव टू गो टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर एंड देन यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग विद द क्लाइंट, विद द पेशेंट। सो आप इस क्वेश्चन को रिमूव कर दोगे, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड ऑन किया है। तो आप क्या देखोगे कि आप असेसमेंट पॉइंट लिखोगे, असेसमेंट के बाद आप सीधा लिखोगे आफ्टर असेसमेंट, अगर आपको पेशेंट लग रहा है दैट इज द पेशेंट वायलेंट बिहेवियर इज और पेशेंट इज मोर एग्रेसिव और मोर वायलेंट बिहेवियर इज नॉट appropriate, so we have to do the follow these steps to maintain safety of nursing personnel also and safety of the patient also, दोनों की सेफ्टी मेंटेन करने के लिए आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं। सो यू कैन राइट इन दिस सीक्वेंस ओनली कि सबसे पहले हम रीस्टेन करेंगे, शार्प रिमूव करेंगे, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे,
और क्लाइंट से देन बात करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरह आप ABC लिखने के बाद, क्वेश्चन फॉर्म लिखने के बाद लास्ट में आप लिख सकते हो मैनेजमेंट। टोटल मैनेजमेंट में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स कवर करने की, मेन पॉइंट्स कवर करने हैं सबसे पहले, दैट इज दी एक्सेलरेशन, देन रीस्टेन्स एंड मेडिकेशंस। मेडिसिन देने से पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मीन्स वर्बलाइजेशन, डी एक्सेलरेशन मीन्स कम्युनिकेशन, आप उसे कम्युनिकेट करके काम डाउन करने की, सिंपैथी देख के, थोड़ा एम्पैथेटिकल बिहेवियर शो करके यू स्टार्ट राइटिंग। इसमें हम क्या फर्स्ट डेफिनेशन कवर करते हुए हम क्या लिखते हैं, डी-एस्केलेशन मींस वी हैव टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, आपने उसके साथ बात करनी है, उसको समझाने की कोशिश करना है, उसको काम करने की कोशिश करना है। उसके बाद वो नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप है उसको रीस्टेन करना है। रीस्टेन हम लॉन्ग रन के लिए नहीं कर सकते और पेशेंट उसके साथ भी मूवमेंट्स कर रहा है तो वो तब भी हार्म कर सकता है, अपने आप को हार्म कर सकता है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, मेडिकेशंस उसको थोड़ा सा कुछ भी, वी हैव टू गिव सम सेडेटिव्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, सो वी यूजुअली वी आर यूजिंग डायज़ेपाम एंड हेलिपेरिडोल फॉर दीज सेटिंग्स। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम दिस क्वेश्चन। आप इस आंसर को कैसे फ्रेम करोगे, you can frame this answer means starting with the definition, main points of security, then after main points of security you start with the nursing management with the assessment of the client violent behavior, client with violent behavior, then you can carry out with your management। इसके बाद आप प्रॉपर जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इसी के साथ अटैच्ड, सो इसके अंदर जो सब हेडिंग्स बनते हैं इनको इन चीजों को डिफाइन करके आप लिख सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट प्रॉपर, और इससे आपका जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो विद दिस वी आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉपिक। So thank you so much all for listening my videos, and please subscribe my channel if you are liking my videos, or if you want any more videos on any topic you can message me। And for my students, those who are having exam for psychiatric nursing, so all the best my students, please do well and score well, and don't take tension, also study well. Thank you.